Assalamu alaikum, everyone. So today we are with you for our second live session, and we're just waiting for our trainers to connect in. Our guests to connect in. They are actually encountering some technical issues with the connectivity. Till that, we'll just give a slight pause for a minute so we can begin the proceedings afterwards. In the meantime, you can post your questions that we can answer in the session. This session is on importance of fitness in life. So I think till the time the guests join us, I'll shortly introduce Let's Rise to you all. As you all know, that Let's Rise is a learning platform built on the sole idea of sharing and a platform where people can engage and learn through the experiences of each other. We don't have any barriers, so anyone who feels comfortable enough to help and bring a change in someone's life can join us and contribute accordingly. So today we're just waiting for our guests to join in. We have a team nutrition with us today. They are working in the aspects of fitness, both at a corporate level and at a social level as well. I have with me my couple of co-hosts, and I would request each of them to introduce themselves to you. So starting from the top, Hello, everyone. This is Zena, and I'll be co-hosting along with Fazan. So let's wait for a couple of minutes. I'm sure Mudassir must be joining in a couple of minutes, so we can start the fitness session. I am so excited for this session. I'm sure you guys would be excited and having lots of questions with you to आप bombard कर देंगे मुदस्सर बहुत सारे questions तो थोड़ा सा इंतजार और करते हैं और start करते हैं अपना session. हेलो माय नेम इज सिद्रा और मैं फर्स्ट टाइम जो है वो इतने अपने टीम मेंबर्स के साथ बैठी हूँ और हम लोग लाइव शो करेंगे आज और फिटनेस जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आई थिंक बहुत सारे लोगों को जो है वो इसके बारे में ख्याल रखना चाहिए। सो लेट्स देखते हैं कि आज हम लोग इसके बारे में क्या-क्या बातें करते हैं और क्या-क्या होता है। आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जब तक वो लोग नहीं आते तब तक हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। सो कितना कितना हाँ, फिटनेस मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही है. Ayaz has ओके। Hello, assalamu alaikum everyone. वालेकुम hello. अस्सलाम यार. कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, थैंक यू. आई थिंक कनेक्टिविटी इश्यूज की वजह से थोड़ा सा चैलेंज आ रहे हैं सबके एंड पे. जी बिल्कुल, अभी मुदस्सिर को भी ये इशू आया हुआ है, वो ट्राई कर रहे हैं मुस्तकिल कनेक्ट करने की. आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन. बाल मेरी तरफ से क्विकली रिजॉल्व हो गया इशू. देखते हैं वो ज्वाइन करते हैं. Got it.
So I think just we'll give just a minute time before we can begin. Sure, sure. Okay. So I think in the interest of time, we'll start off with you, Ayaz, as our sole guest here, and in the meantime, Mudassir will join in the middle. I think it won't take much time because he's trying it, and hopefully the issue gets resolved. So we just introduced Let's Rise to the audience, and I also I introduced. guess Ayaz का mic off है, तो Ayaz अपना mic up unmute कर दें. नहीं, मैं असल में म्यूट इसलिए किया था कि मैं अपने प्रोग्राम में इसका बड़ा यूज्ड हूँ कि मेरी तरफ से इको जा रहा होता है बार-बार, तो जब कोई और बोलता है तो अपना माइक म्यूट कर देता हूँ. Sure. Okay, got it. Okay, got it. So जी फैजान, कुछ कह रहे थे आप? जी, आज हमारा टॉपिक है अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आवाज आ रही है सही? Yes, you are loud and clear. ठीक है सर. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. थैंक यू लेने के लिए, और सॉरी कि मेरी वजह से काफी लेट हो गया. Well, I think let's formally begin without further delay. So thank you first of all for taking time out and joining today. Pleasure. We heard a lot about Team Nutrition, the kind of activities you guys are doing with respect to fitness in terms of both at a corporate level and at a social level. So we would love to hear from you guys, and would be interested to learn and reflect on your journey today. So myself is Faizan, and I am founder of this Let's Rise platform. Alongside with me, I have two founding members with me, Zainab and Sidra, who will be co-hosting this session with me. So I'll just request a short introduction from both of them, and then we'll begin this session in an interactive manner. Hello everyone, this is Zainab. मुझे लगता है कि हम अपना इंट्रोडक्शन देके, मेरे ख्याल से ऑडियंस इज वेटिंग फॉर फिटनेस फिटनेस टॉक, तो मेरे ख्याल से हम अपने इंट्रोडक्शन को स्किप करते हैं. वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस अस फैजान, सो काइंड ऑफ यू. तो हम स्टार्ट करते हैं. मी एंड सिद्रा बोथ आर को फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ लेट्स राइज, एंड लेट्स राइज का प्लेटफॉर्म इज ऑल अबाउट teaching people and engaging students and people who want to grow. So हमारा यही मोटिव है कि हम engaging content के साथ लोगों के साथ interact करें और लोगों को एक अवेयरनेस दें कि क्या है सोसाइटी में, क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या अपडेट्स होनी चाहिए अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ. लाइक हेल्थ इज मेन इशू. फिटनेस बहुत जरूरी है. So let's start. मुदस्सिर, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा अपनी फिटनेस जर्नी से स्टार्ट करते हैं, एंड देन आई एम श्योर कि क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर क्वेश्चंस को लेते हैं. आप ओवर टू यू मुदस्सिर. ऑलराइट जी. अस्सलाम वालेकुम अगेन एवरीवन, और जो देख रहे हैं, थैंक यू फैजान साहब एंड टू होल टीम ऑफ लेट्स राइज हमें ऑन बोर्ड लेने के लिए. और इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म एंड आई होप के इट ग्रोथ मैनीफोल्ड, काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा, इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है. अच्छा, आई थिंक आई एम क्लियर, आई एम लाउड एंड क्लियर. ठीक है जी. अच्छा, मैं ब्रीफली सा अपना इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट मी, एंड देन आई विल हैंड ओवर टू अयाज. वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे.
तो न्यूट्रिशन बेसिकली वी स्टार्टेड ऑफ न्यूट्रिशन इन 2012. 2012 में हमने स्टार्ट किया था. मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि बिफोर दैट अयाज एंड हम लोग की मुलाकात ही जिम में हुई थी. बड़ी इत्तेफाक की बात है कि हम लोग की दोस्ती हुई थी. एक जिम में हम जाते थे तो अयाज वहाँ पे मुझे गाइड करते थे और बहुत सारी मिथ्स थी, बहुत ज़्यादा जो है ना इश्यूज होते थे रिगार्डिंग फिटनेस, बहुत सी रॉन्ग कॉन्सेप्ट से. यही रीज़न था कि हमने मैं उसको बड़ी स्टोरी बड़ी लंबी उसको शॉर्ट कर रहा हूँ कि हमने वी केम अप विद द आइडिया ऑफ न्यूट्रिशन के एज टू हाउ वी कैन गाइड पीपल रिगार्डिंग फिटनेस, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, और किस तरह हम लोगों को बताएं कि बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं. नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ फिटनेस ट्रेनर सर्टिफाइड, दे आर सर्टिफाइड, और बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियंस हैं. इट्स अ गुड थिंग. इंडस्ट्री इज ग्रोइंग बट स्टिल लॉन्ग वे टू गो. तो मैंने मेरे मैम एमएससी इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची. तो रीज़न बीइंग कि मैं इस चीज़ से एसोसिएटेड रहा. देन आई स्टार्टेड माई जॉब. मेरी पहली जॉब थी एबट न्यूट्रिशन में. तो न्यूट्रिशन का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रहा कि क्लिनिकल साइड पे, हॉस्पिटल साइड पे क्या क्या इश्यूज रहते हैं, पेशेंट्स को न्यूट्रिशन क्या क्या इश्यूज होते हैं, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा. देन हमने जब स्टार्ट किया तो हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे. हमने इसको स्टार्ट किया एज अ फिटनेस पार्टनर, हम लोग इसको लेकर आए. देन अयाज जो अपना बता रहे होंगे वो अपनी जर्नी बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन सी सर्टिफिकेशन वगैरह किए. देन हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए. हमारा गोल यही था कि हम फिटनेस को थोड़ा सा लोगों के लिए ईजी और फन करें. अच्छा, फन डजंट मीन कि बहुत आसान हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा इन दैट सेंस के फिटनेस का जैसे हमारे पास ख्याल आता है या न्यूट्रिशन का ख्याल आता है तो वी लाइक समथिंग पॉप्स अपन यार माइंड्स के, यार बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत तरह के वेट्स उठाने होंगे, बहुत ज़्यादा यू हैव टू स्वेट इट आउट, बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी तो आप जब फिट हो सकते हैं. तो फॉर दैट हम न्यूट्रिशन के साथ लेकर आए बहुत सी चीज़ें. डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस, सेमिनार्स. देन हमारे जो पर्सनल ट्रेनिंग के सेशंस होते हैं. तो दैट्स अ ब्रीफ लाइक इंट्रो ऑफ न्यूट्रिशन एंड मी. देन Ayaz will tell you further about it and हमारे further future plans क्या हैं, हम लोग क्या किस तरह कर रहे हैं, किस तरह कर रहे होंगे चीज़ें. Ayaz. थैंक यू मुदस्सिर. वेल, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन ऑल दी ऑडियंस. और मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं, उसके बाद फिर न्यूट्रिशन की कुछ चीज़ें जो मैं ऐड करना चाहूँगा और जो मुदस्सिर ने बताई उसमें. अच्छा, मैंने पहले हेल्थ एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की थी, स्पोर्ट्स मतलब फिटनेस सर्टिफिकेशन से पहले. तो उससे रेलेवेंट हम लोगों ने काफ़ी वर्कशॉप्स, सेमिनार्स वगैरह किए थे मुदस्सिर के साथ ही विद द प्लेटफॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन. काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जुड़े, तभी से हमारी लर्निंग स्टार्ट हुई थी कि हम लोगों ने एक्चुअली करना क्या है. क्योंकि जब हम शुरू में आए थे तो हमने मेन चीज़ ये फील की थी कि एक बहुत बड़ा गैप है दो टाइप के लोगों के बीच में. एक तो जो सारी बात है क्लाइंटशिप है, क्लाइंटेज है, जो लोग करना चाह रहे हैं, फिटनेस की तरफ आना चाह रहे हैं. दूसरे वो जो कोई प्रोवाइड कर रहे हैं. अब प्रॉब्लम क्या होती है, जो मुदस्सिर ने बात बताई अभी, कि एक अजीब सी मतलब इमेज बनती है हमारे माइंड में, बहुत ही हार्डकोर टाइप की. जब फिटनेस की बात करते हैं हम लोग तो वो ये कि हमें बहुत वेट वगैरह उठाने होंगे, भाग दौड़ करनी होगी और बहुत कोई बोरिंग सी चीज़ होगी, स्ट्रगल्स आएंगे काफ़ी. और जब न्यूट्रिशन की डाइट की बात होती है तो कोई रूखे पीके खाने माइंड में आते हैं. अच्छा भाई, खाना पीना सब खत्म हो गया, लज्जत खत्म हो गई हमारी, हमने अब घास फूस खानी है शायद. तो ये एक्चुअली फिटनेस नहीं है. ठीक है, चंद गोल्स ऐसे हो सकते हैं जिनको अचीव करने के लिए हम ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने खाना पीना छोड़ देना है और सब यही घास फूस खानी है और रूखी सूखी बोटियाँ खानी है और इससे फिटनेस हमारी अचीव हो जाएगी. ये चीज़ें बल्कि बाद औक़ात हैज़ार्डस भी हो जाती हैं हमारी हेल्थ के ऊपर, बहुत स्ट्रेसिंग होती हैं. तो हमने सोचा कि यार वो चीज़ जो बीच में गैप आ रहा है, लोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस चक्कर में जाते ही नहीं, बहुत सारे लोग नहीं जा पाते. अब मुदस्सिर को अगर आप देखें तो उसका रुझान नहीं बन पाता एक्सरसाइज के लिए, जिम की एक्सरसाइज वगैरह जो होती है. लेकिन आप उससे जनरल फिटनेस एक्टिविटी करवा लें, वो बेतहाशा कर लेता है, वो बहुत सारी चीज़ें करता है, इस तरह वॉक पे जाना और स्पोर्ट्स में एंगेजमेंट होना. तो इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जिम जाके वर्कआउट नहीं करना चाहते और वो चाहते हैं कि हम हर फ्लेवर, हर चीज़ इंजॉय करें लाइफ की. दे आर फूडीज ऑब्वियसली. इवन मैं खुद भी काफ़ी हद तक फूडी हूँ, इतना नहीं जितना मुदस्सिर है, लेकिन मैं मीठे का बहुत शौकीन हूँ, छोड़ नहीं सकता मैं मीठा. द थिंग इज के फिर हम लोगों ने इन द मीनवाइल ये लर्निंग की कि ये सब चीज़ें कैरी ऑन करते हुए, लाइफ को एंजॉय करते हुए हम किस तरह फिटनेस में इन हो सकते हैं.
फिर हम लोगों ने इसको फाइनलाइज किया कि अच्छा न्यूट्रिशन में ये होना चाहिए कि इस गैप को हम फिलअप करें। इसके अलावा मेरी जो और सर्विसेज जो मैं दे रहा हूँ वो लेक्चरशिप है। आई एम गिविंग लेक्चर्स ऑफ फिटनेस, एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज मेथोडोलॉजी इन ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी। बाकी अब आप लोगों पर जो क्वेश्चंस पूछना चाहें, रेलेवेंट अप टू यू गाइस। आई थिंक थैंक यू सो मच, आपने बड़ा डिटेल में जिस्ट बिल्ड किया और स्टार्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक वी वांट टू कीप दिस सेशन मोर इंटरेक्टिव, तो क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई थिंक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं और फिर उसके अंदर ही हम अपनी तरफ से भी आपसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आ रहा है उसको प्लीज आंसर कीजिएगा। अगेन एनी वन ऑफ यू, मुदस्सिर और रियाज। अच्छा, इसका आई गेस हम दोनों ने साथ जवाब देना चाहिए, क्योंकि एज आई सेड के हुआ ये था कि मैं बड़ी पर्सनली स्पीकिंग, लाइक फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं पर्सनली जो है ना जिम जाना बड़ा अवॉइड करता था। तो अभी भी ऐसा होता है, यार मैं किस के ला रहा होता है यार तुमने चल रहा है। लेकिन पॉइंट ये कि जिम इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। आवाज इको हो रही है। जिम इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। हमने इसको जो एक तो ये था कि जो ड्राइव थी या जो किक था वो यही था कि यार अपने आप को फिट रखना है, कि अपार्ट फ्रॉम दैट कि मैं फूडी हूँ, मैं जिम जाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, बट मुझे स्पोर्ट्स पसंद है और फिट रहना पसंद है। और मेरे ख्याल से कोई ऐसा शायद ना हो कि उसको फिट रहना पसंद ना हो। उसके पीछे एफर्ट्स होती हैं। जब भी हमने इस आइडिया को लेकर है कि यार लोगों के लिए आसान करते हैं फिटनेस को, राइट, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, और जब हम इस चीज़ में डाइव इन करेंगे तो ऑब्वियसली हमें खुद भी फिट रहना ज़रूरी और फर्दर हो जाएगा। मैं लाइक कंपेयर करता हूँ अपने बहुत से फ्रेंड्स के साथ। अयास के जो भी हमारे एज ग्रुप के लोग हैं, बहुत से वो गिव अप कर जाते हैं। वो एक बात है कि 30 क्रॉस करते हैं, वो समझते हैं यार अब दैट्स लाइक लिमिट हो गई है, अब हम बूढ़े होने वाले हैं या हो जाएंगे या जो भी हम सब चीज़ छोड़ सकते हैं। तो यही प्लान्स हैं कि हम लोग फिटनेस को, लाइफस्टाइल को, हेल्थ को इतना तो मुश्किल ना बनाएं, इजी रखें। एक सॉर्ट ऑफ अ मूवमेंट जो है, मूवमेंट है, यू कैन से, कि हम लोगों को अवेयर करें रिगार्डिंग दैट स्पेसिफिक टॉपिक। तो यही एक पर्सनल ड्राइव थी और इसी के लिए हम लेके चल रही है। इनिशियली हमें बहुत ज़्यादा कोई अर्निंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। हमने बहुत से फ्री में प्रोग्राम्स किए, खड़े हो के खुद भी हमने मॉल्स में, और आयास याद होगा हमने रिसर्चेस खुद किए हैं, पूरा ब्रांड प्लान खुद बनाते थे और हम लोग मॉल्स में जाने की चीज़ें करते थे। ये उनके लिए अच्छा, लोग हमें बोलते हैं कि यार तुम लोग अपना जिम कोई क्लब क्यों नहीं है। बहुत से इन्वेस्टर्स भी आए, ऐसा नहीं, स्टिल आते हैं, बोलते हैं यार हमसे इन्वेस्ट कर लो। बट आवर आइडिया वाज लाइक प्रीटी क्लियर कि हमने उसको इजी रखना है, हम एक जगह लिमिटेड नहीं होना चाहते, वी वांट टू बी लाइक एवरीवेयर। और देन लकीली अब डिजिटल मीडिया में इतना ग्रो कर गया है, तो वी हैव आवर ओन चैनल, उसको और ज़्यादा फर्दर स्टैब्लिश करेंगे डेफिनेटली। अयाज इज टीचिंग, उनके स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। मैं एज अ मार्केटियर, मैं मेरी जो डे जॉब इज एज अ ब्रांड मैनेजर, मैं वहाँ पे चीज़ें लर्न कर रहा होता हूँ, वहाँ पे सीख के मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इट्स लाइक कलेक्टिव सॉर्ट ऑफ थिंग। तो हमारा यही था, आई एम श्योर अयाज का भी हमारा, क्योंकि प्लान साथ ही हमेशा रहा, तो साथ ही बैठ के इसको बनाया था और अब तक यहाँ तक लेकर आए। राइट, मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा फिटनेस से रिलेटेड ही। प्रधान, अगर आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा तो वो ये कि मैंने जैसे कहा कि एक फिटनेस में जो और इंडस्ट्री में जो गैप है वो फिल करने की नीड थी, तो पहले में अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि फिटनेस होती क्या है। हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन सबसे बड़ा ये है कि फिटनेस का मतलब होता है मसल्स गेन कर लेना या वेट कम कर लेना। खवातीन के लिए खासतौर वेट कम करना होता है, मेल्स के लिए वेट गेन करना होता है, मतलब मसल्स गेन करना होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिटनेस के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें से एक छोटा सा कंपोनेंट है बीएमआई, जिसको हम लोग मतलब बॉडी को कम करना, ज्यादा करना कहते हैं। जनरली फिटनेस की मीनिंग ये होते हैं कि आप अपनी फंक्शनैलिटी इंप्रूव करें, कि आपकी डेली रूटीन की जो वर्क होते हैं वो बहुत अच्छे से हो पाएं और विद लीस्ट पॉसिबल फटीग हो। ऐसा नहीं है कि आप काम करेंगे फटीग नहीं होगा, लेकिन बातों का ऐसा होता है कि आपसे एक दो काम एक्स्ट्रा करने पड़ जाते हैं तो आपकी हालत बहुत खराब हो जाती है, थक के चूर हो जाते हैं, इतनी हालत खराब होती है कि चांसेस होते हैं कि शायद बीमार पड़ जाएंगे। तो अगर ये चीजें हैं तो आप फिट नहीं है, अगर आप उसको बेयर कर जाते हैं तो आप फिट है। तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये हो गया है कि अक्सर लोग जो जिम्स जाते हैं उनसे आप जनरल वर्क करवाएं तो उनसे नहीं हो पाता, जबकि अजम्पशन ये है कि
ये बंदा जिम जाता है बहुत स्ट्रांग होगा। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरा एक लड़का है, दोस्त हमारे साथ होता है वहाँ जिम में, तो बता रहा था मुझे मोटर जो वो कहते हैं ना, इंजन क्या कहते हैं उसको, सॉरी जनरेटर जो है खराब हो गया था, अब उसको चेन खींच के स्टार्ट करना पड़ गया। अब जब चेन खींच के स्टार्ट किया तो उसके हाथ में जो है वो स्पेन आ गया। क्यों आ गया? बिकॉज उसकी फंक्शनैलिटी जो हर्ट हुई थी। उसको सिर्फ स्पेसिफिक मूवमेंट में वर्कआउट करने की आदत है कि बस ये इस तरह डंबल उठाने, इस तरह वेट उठाने, तो बॉडी इसकी बहुत अच्छी है लेकिन फंक्शनैलिटी वो खो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को फंक्शनल बनाएं, बजाय इसके कि ये फोकस करें कि हम कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। नहीं, दैट्स राइटली पॉइंटेड आउट, थैंक यू फॉर दैट एंड गुड एडिशन। जैनब, आप कुछ पूछना चाह रही थी? I wanted to ask कि अयाज मुझे बताएं कि आप मतलब how you guys proceed with this nutrition, मतलब अगर आप लोगों की कोई on location कोई जगह नहीं है, कोई जिम नहीं है, तो it's only a home workout और what चैनल के थ्रू वर्कआउट होता है, या फिर आप लोग ऑनलाइन अपने क्लाइंट को सर्विसेज देते हैं? How you guys go about it? वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक के हर बंदा से पहला सवाल यही पूछता है कि आप लोग कैसे कर सकते हैं, उसको प्रोसीड कैसे करेंगे आगे। देखिए, हमने जिम अगर नहीं खोला था तो उसका पहला जो रीजन था, सबसे पहला रीजन जहां हमें थोड़ी कंफ्यूजन भी थी इस हवाले से, वो ये थी कि देखिए हर कोई जिम नहीं जाना चाह रहा, तो हम आप तक चले जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने लोगों तक जाना, उनको अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया कि चले ठीक है हम आप तक आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हम 2 बंदे पूरे कराची में हर बंदे के पास नहीं जा सकते, ठीक है। तो हमने एजुकेट करना स्टार्ट किया थ्रू इंटरनेट के, यूट्यूब पे वीडियोस बनाई और हमने कहा कि ठीक है हम प्रोग्राम्स करेंगे, वर्कशॉप किए, सेमिनार्स किए, ये सब चीज़ें करना शुरू की। तो अभी हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है वो ये है कि हम कॉर्पोरेट, फैजान ने शुरू में मेंशन भी किया था उसको, कि हम कॉर्पोरेट पे जाते हैं, स्कूल्स में प्रोग्राम करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम करते हैं और उसके अलावा पर्सनल ट्रेनिंग्स देते हैं। तो इस तरह से लोग हमसे अटैच हो सकते हैं, मतलब कनेक्ट हो सकते हैं, एंड दैट्स हाउ वी ट्रेन देम। और कुछ और भी प्लान्स हैं, मैं अभी फिलहाल रिवील नहीं कर सकता। कुछ अर्से के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को न्यूज़ देंगे कि और किस तरह से हम लोगों ने कनेक्टिविटी बेहतर बनाई है टुवर्ड्स द पीपल। अच्छा, अब मुझे एक और चीज पूछनी थी कि हम फिटनेस को बहुत टाइम बाउंड लेते हैं कि बस 1 महीने में हमारा वजन कम हो जाए, 3 महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, और उसके बाद जब आप अपने गोल के करीब पहुंचते हैं तो यू गेट सो एक्साइटेड कि उसके बाद आप कहते हैं ओ भाई हमने तो कर लिया अपना गोल अचीव। उसके बाद आप वो दोबारा से दबा के खाना शुरू हो जाते हैं, एंड देन यू एंड अप गेनिंग ऑल द वेट जो आपने लूज किया था ओवर द जर्नी। तो फिटनेस के टाइम फ्रेम होता है, टाइम बाउंड होता है, या फिर इट्स लाइक लाइफ टाइम जर्नी? अच्छा, इसका मैं थोड़ा ये बड़ा हमारे साथ रहता है। अयास, तुम्हारा माइक बंद है? सॉरी, हाँ मेरा माइक म्यूट था, तुम बोलने पहले बता दो फिर बता दो। ठीक है। अच्छा, ये बड़ा इशू होता है हमारे पास। नॉर्मली जो क्लाइंट आते हैं या जो भी जनरली पूछ रहे होते हैं, ये पहला क्वेश्चन यही होता है जो आपने कही, हमेशा पैटर्न रहता है कि आप लोग अपना जिम नहीं है तो कैसे मैनेज करते हैं। सेकंड ये होता है कि यार जो हम लोग फिटनेस जो है कितने दिन में अचीव कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं वो लेवल जो है जो हम चाह रहे हैं। किसी को वेट लॉस करना होता है तो इट्स नॉट लाइक दैट। बेसिकली जो फिटनेस है ये पार्ट ऑफ अ लाइफस्टाइल आपको बनाना होता है। अनलेस कि आप उसको नहीं बनाते पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल, जैसे आप खाते हैं, जिस तरह आप सोते हैं, जिस तरह आप प्रे करते हैं, इसी तरह ये एक चीज़ है। आप जब जिस तरह ऑफिस जाते हैं या कोई भी काम करते हैं अपना, तो अनलेस कि उसको आप पार्ट ऑफ लाइफ नहीं बनाएंगे तो अटेन नहीं कर सकते। बहुत से होते हैं ट्रेनर्स, स्टिल हमारे साथ ये इश्यूज हैं जो हम मार्केट में देख रहे होते हैं। बहुत से ट्रेनर्स जो कि क्लेम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें भी थोड़ा सा चीज़ें बैकफायर कर जाती है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ कोई शॉर्टकट देते नहीं है। नॉर्मली गेट लाइक कॉल्स फ्रॉम क्लाइंट्स जो हमें अप्रोच करते हैं कि यार हमें 1 महीना ये हम कर सकते हैं। हम बोले यार देखो पॉसिबल नहीं है, इट्स अप टू यू कि 1 महीना 2 महीने हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। यू हैव टू पुट इन ऑल दी एफर्ट्स। अनलेस कि आप एफर्ट्स नहीं डालते और उसको पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल ही बनाते तो आपको आप रिवर्ट कर जाओगे, आप दोबारा उस चीज़ पे चले जाओगे, फिर आप हमें कोर्स रहोगे, एंड में आप किसी भी ट्रेनर के पास चले जाओ। बड़ी इजी एग्जांपल देते हैं कि आप मुझे इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश इंप्रूव करनी है, मैं किसी भी ट्रेनर किसी भी इंस्ट्रक्टर के पास चले जाऊँ, अनलेस कि मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, उसको पार्ट ऑफ लाइफ नहीं, मतलब उसको सीरियसली लूँगा, तो मैं कभी भी उसको नहीं सीख सकता। तो आई गेस यही इसका आंसर है कि आप किस तरह आपने चलाना है, उसको कंटिन्यू करना है, पार्ट ऑफ लाइफ बनाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक
मैं कुछ यहाँ पे बात डिस्कस करना चाह रही हूँ कि आजकल जैसे कि सब क्वारंटाइन लाइफ चल रही है एंड मुझे आई फील लाइक कि सब लोग बहुत अनहेल्दी बहुत खा रहे हैं बिकॉज हर जगह बेकिंग हो रही है और ब्रेड बन रही है और ईस्ट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है. सो व्हाट डू यू गाइस सजेस्ट कि हाउ शुड पीपल एक बैलेंस उसको किस तरह से किया जाए बिकॉज लोग तो बिल्कुल बूम हुए हैं, बहुत खाना पीना बहुत ज्यादा हुआ है लोगों का. तो उसको किस तरह से आप कर एवेल्यूएट करेंगे हाँ भाई ये इस तरह से चीजें होनी चाहिए. एंड आई थिंक पर्टिकुलरली देखिए जब भी इस टाइम इसके बिटवीन के अंदर जो हमें एकदम से क्रेविंग होती है कि चिप्स के पैकेट्स भी यूज हो जाते हैं और वो बिस्किट्स भी यूज हो रहे हैं और अनहेल्दी ड्रिंक्स भी यूज हो रही हैं, स्पेशली इन ये दिस क्वारंटाइन टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया. अच्छा देखिए ये डिपेंड करता है आप लोगों के अपने ऊपर हम ब्लेम कर देते हैं अक्सर सूरत हाल को, सिचुएशंस को. बहुत इजी होता है चीज़ों को ब्लेम करना कि यार फलाना रीज़न की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, मैं बहुत बिजी था, मैं अपनी डाइट नहीं बना सकता, या ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती. ये बहुत आसान तरीका होता है कहने का. लेकिन देखिए चॉइसेस आपके पास हैं. आप कुछ छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप बहुत बेहतर लाइफस्टाइल अब आप अडॉप्ट कर सकते हैं. मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैं काफी अर्से से आउट ऑफ डाइट चल रहा था, मैं कोई प्रॉपर डाइट कर नहीं पा रहा था, मेरा फैट कंटेंट बढ़ता जा रहा था. मैं खुद हालांकि ट्रेनिंग कर रहा हूँ उसके बावजूद, लेकिन पता होता है कि हमने ये एरर्स हैं इसको हम लोग बेहतर कर सकते हैं. होता क्या है कि जब आप बाहर जाते हैं, बल्कि जब घर में बैठे होते हैं, आपको क्रेविंग होती है, तो आपके पास अप्रोचेबल होती क्या चीज है, आपके फ्रिज में क्या है, आपने स्टॉक क्या किया है, दैट मैटर्स द मोस्ट. तो अगर आपने स्टॉक ही ये चीजें की हुई हैं, जूसेस, चिप्स, बिस्किट्स, जारी बात है आप यही काम करेंगे. अब आपने फिर आपने एक बात कही कि ईस्ट का इस्तेमाल हो रहा है, ब्रेड वगैरह बनाई जा रही है, सब की जा रहा है. अब आप देखें इस काम के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं कि आप ब्रेड बना रहे हैं, ठीक है. तो आप कोई ऐसी मेहनत क्यों नहीं कर लेते जो आपके लिए हेल्दी है. अब ब्रेड मैंने आज खुद बनाई है, मुदस्सिर से मैं शुरू में खुद शेयर कर रहा था कि मैंने कहा मैंने ब्रेड बेकिंग की इतनी वेरिएशन ट्राई कर ली है अभी, लेकिन मैं ब्रेड बना रहा हूँ ब्राउन वाली, उसमें मैं मल्टीग्रेन, होल ग्रेन यूज कर रहा हूँ. ईस्ट का इस्तेमाल जितना रिकमेंडेड होता है उसका 25% यूज करता हूँ. अब वो उस तरह से जारी बात है वो प्रूफ नहीं होती है, इट डजंट मैटर. हेल्दी चीज वैसी नहीं होगी जैसे आप खाते हुए आ रहे हैं. थोड़ी सी एडिक्शन से इस तरह से आपको क्या कहते हैं गेट इट करना पड़ेगा. बाकी ऐसा नहीं है कि मजे की चीजें जो होती हैं बहुत अच्छी चीजें वो खाना मना है. इवन आज भी मेरे घर बिरयानी बनी है, मैं खाऊंगा. द थिंग इज उसका पोर्शन छोटा सा होगा, क्वांटिटी कम होगी, मुझे क्वांटिटी कंट्रोल करनी होगी. और जो सेहतमंद चीजें उसको प्रायोरिटी रखें, उसके बाद आप थोड़ी सी क्वांटिटी में जो दिल चाहे आप खा लें, क्रेविंग फील करें. अच्छा जबरदस्त मुदस्सर एंड अयाज. मुझे एक और बात बताएं कि हमारे पास वैरायटी ऑफ डाइट्स अवेलेबल होते हैं. कोई कहता है कि लो कार्ब डाइट कर लें, कोई कहता है कि कीटो डाइट कर लें, कोई कहता है कि वो बिलीव मी अभी आपने बात करना स्टार्ट की थी ना, अब मुझे पता था अभी कीटो का नाम आने वाला है. थर्ड तो क्वेश्चन आप यही कंटिन्यू होता है करें, मैं जवाब देता हूं. हाँ इसी सवाल के अंदर एक चीज और ऐड कीजिएगा, जो जो कीटो की बात है और एक होती है ना हमारी के वी गाइस एसोसिएट कह लें हेल्दी डाइट को ग्रीन और येलो कलर्स के साथ भी ना, कि इस तरह के लोग जो होंगे कॉन्शियस, वो उनके हाथ में आपको हरी पीली चीजें ज्यादा दिखती हैं, येलो बॉटल्स होंगी, ग्रीन बॉटल्स होंगी. वो मतलब ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट दे आर मेंटेनिंग अ हेल्दी रूटीन बट दे आर इवेंचुअली नॉट. अच्छा, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैंने इस पूरे रमजान के अंदर कीटो फॉलो किया एंड आई एम ट्राइंग टू लूज वेट. बट अगेन मैं आई हैव बीन स्टडीइंग कीटो, सारी चीजें, इट्स बीन लाइक 2-3 इयर्स कीटो को मैं फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ, ऑन ऑफ. कभी लेजी कीटो, कभी स्ट्रिक्ट कीटो, चल रहा है ऑन ऑफ. बहुत सारे लोग कीटो को रेकमेंड करते हैं, बहुत सारे लोग कीटो को बहुत ज्यादा मना करते हैं कि कीटो बहुत अनहेल्दी डाइट है. मैंने लो कार्ब भी किया है, कीटो भी किया है, तो एज कंपैरिजन कीटो में आपको बहुत वैरायटी खाने को मिल जाती है और आप कीटो में अपना हर वेरिएशन, डिजर्ट और फ्राई आइटम और हर चीज खा सकते हैं. बट ऑन अदर हैंड लो कार्ब डाइट में हम बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, सिर्फ सूखा और घास फूस ले सकते हैं. और यस वी कैन डू चीट इन लो कार्ब, बट कीटो में हम चीट नहीं कर सकते.
तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो प्लीज अयाज, मुझे लग रहा है आपके पास बहुत कुछ है शेयर करने को, तो ओवर टू यू। बहुत सारा है मेरे पास नहीं, मुदस्सिर के पास भी बहुत कुछ है, वो मेरी बात यकीन है कुछ ना कुछ वो भी इसमें ऐड ऑन करेंगे पॉइंट, मुझे आइडिया है। देखिए डाइट्स वैरायटी होती है, सिंपल सा एक मैं नुस्खा बताऊंगा, ये टिप इसे कह लीजिए कि चीज वो फॉलो करें जो आप थ्रू आउट द लाइफ लेके चल सकें। आप बताइए कि आप कीटो थ्रू आउट द लाइफ लेके चल सकती हैं? नहीं, लेकिन Is it एक possible? गोल अचीव करने के लिए तो हो सकता है। ठीक है बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखिए पहले हमें, सॉरी मैंने माइक ऑफ कर दिया था। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, पहले वो ट्राई कर लेनी चाहिए। अच्छा कीटो इज नॉट अनहेल्दी, लेकिन जिस तरह से लोग कर रहे होते हैं, बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि आप कह रही हैं कि 2 साल से आप उसको स्टडी कर रही हैं, तो स्टडी करने के बाद अगर आपको न्यूट्रिशन के हवाले से काफी कुछ पता है, काफी वेल वर्स्ड हैं आप इस हवाले से, I think we lost Ayaz. Till the time he reconnects, मुदस्सिर आप एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा इसको। अच्छा, मैं अयाज की बात भी कंटिन्यू करूंगा। ये बड़ा क्वेश्चन बड़ा नॉर्मली हमारे पास आता है। कीटो इज अ बज़वर्ड नाउ, जो फिटनेस इंडस्ट्री में हर जगह एक बज़वर्ड होता है और एक कैचवर्ड होता है। तो कीटो के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज़्यादा गलत हैं। आई होप के जैनब जो है उनके वो बड़ी सही इसको इन्फॉर्मेशन होगी कि हाउ टू फॉलो बेसिकली कीटो क्या है। बट जो इशू है वो ये है कि जो आप चीज़ फॉलो कर रहे हैं, आपके गोल्स क्या है, आप गोल्स किस तरह डिफाइन कर रहे हैं अपने, दैट मैटर्स। गोल किस तरह बना रहे हैं अपने, कि वेदर आपको कुछ कहीं पे कॉम्पीट कर रहे हैं, लाइक अगर आप कोई स्पोर्ट्समैन है या एथलीट है, वहाँ पे गोल्स होते हैं। क्या आपने मतलब गोल्स कैसे डिफाइन हुए, लाइक कीटो करना अगर आप उसको कंटिन्यूसली करते हैं तो नॉर्मली पहली बात है, हम जिस तरह के सोसाइटी में रहते हैं, जिस तरह की हम लोग पूरी फैमिली के साथ अपने सब चीज़ें चला रहे होते हैं, वह पॉसिबल नहीं कि आपको उसको फॉर गुड लेके चलें, एंड इट्स नॉट हेल्दी। बड़ा इजी सा एक कॉन्सेप्ट है। हम नॉर्मल लोगों को बता रहे होते हैं, जब अपने सेमिनार्स वगैरह भी हमारे होते हैं, क्लाइंट से डील करते हैं, तो वो भी बोलते हैं यार हमें बस हमारा गोल है कि हमने दिस एंड दैट जो भी चीज़ें हैं, बोलते हैं यार कीप इट सिंपल। और लाइक जो नॉर्मल रूटीन के लोग हैं, अगर हम अपने आप को सेलिब्रिटी से या सतीश से कंपेयर करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, हम उस चीज़ को नहीं फॉलो कर सकते। बट अपना बेस्ट वर्जन जरूर सामने ला सकते हैं एफर्ट्स के थ्रू। एक कॉन्सेप्ट होता है रेनबो ईटिंग का। रेनबो ईटिंग इज लाइक अगर मैं घर में डिस्कस कर रहा था, अगर आप आए डेली तो सिर्फ फ्रूट्स इतने सारे होते हैं मार्केट में कि आप खा ही नहीं सकते। आप अगर एक फ्रूट खाने में शुरू करें तो शायद आपको 15-20 डेज लगेंगे रिपीट करने में फ्रूट। एक जस्ट एग्जांपल है। सेम इज लाइक कि दूसरे भी कितने भी चीज़ें अवेलेबल हैं, वेजिटेबल्स हैं, और न्यूट्रिशन की बात करें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके जो भी है, उसमें बहुत सारी वैरायटी है। तो अगर रेनबो ईटिंग मीन्स कि आपने नेचर में हर चीज़ रहते हुए RDA यानी कि जितनी आपके अलाउड है, जितनी रिकमेंडेड है डेली अलाउंस आपकी जो है, उस पर रहते हुए अगर आप खाएं तो, और अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें और मूवमेंट रखनी है अपनी बॉडी में, और मॉडरेशन में खाएं, तो मेरे ख्याल से बहुत सी चीज़ें कवर हो सकती है। मैं आपको अपनी जस्ट शॉर्ट सा अपना बताऊंगा कि मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया हुआ था। मुझे बड़ी डांट पड़ती थी आयाज से और अपने आप से भी कि क्या कर रहे हो भाई अपने साथ। तो मैंने अभी रमज़ान में, अच्छा मैं क्वारंटीन वाला मैं आपको बता दूं, मैंने इसको बहुत टाइम को बहुत तरीके से यूज़ किया है। और यहाँ पे जब से स्टार्ट हुआ हमने बड़े रूटीन बनाया। हमने लकीली ये हुआ कि हमारा बाहर का खाना बिल्कुल कम खत्म हो गया। हमने अभी तक कुछ नहीं खाया बाहर से, ना कोई बर्गर एंड ऑल दैट। देन घर में जो चीज़ें बन रही थी वो हेल्दी बन रही थी, बहुत अच्छा रूटीन फॉलो हो रहा था, एक्सरसाइज बहुत दबा के हो रही थी, वॉक एक्सेट्रा जो भी रूटीन बहुत अल्लाह का शुक्र है मेंटेन हो गया। तो मैं खुद देख रहा था, मैं हैरान था कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सेइंग कि हमने वेट गेन कर लिया है, रूटीन आउट हो गया, दिस एंड दैट वाज द टाइम टू मेक योर रूटीन, कि आप किस तरह अपने रूटीन को सेट कर सकते हैं। जब हम बोल रहे थे कि अर्थ अपने आप को रीसेट करे, तो हम अपने आप को रीसेट क्यों नहीं कर सकते। देन केम टू रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत और ज्यादा अच्छे तरीके से हुआ। आपकी बॉडी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा सब रीसेट होता है, प्रोवाइडेड कि आप जो चीज़ खा रहे हैं वो कितनी हेल्दी है। अगर आप पराठे खाते रहेंगे शहरी में, देन आप शाम में समोसे खाते रहेंगे, तो फिर तो चीज़ नहीं हल होनी।
अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, मेरी बात भी अधूरी रह गई थी वहां पे, अगर मुझे आप टाइम दे दें थोड़ा सा। तो अब जैसे पराठे वाली बात मुदस्सिर ने की है कि पराठे खाते रहेंगे, मैं वो बंदा हूँ सहरी में जैसे शुरू से पराठे खाएं, और मैं आज भी पराठा ही खाता हूँ, ठीक है। आई कांट हेल्प इट, और मैं इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, पराठे ही नहीं खाता, पराठा खाता हूँ, ठीक है। वो कम तेल में बना हुआ पराठा होता है, एक पराठा होता है खाली, और साथ में चीजें हेल्दी होती है, बाकी जो होता है मतलब ऑमलेट होगा, थोड़ी सी वेजिटेबल होगी, इस टाइप की चीजें होंगी साथ में। फिर ये होता है कि मेरी अफ्तारी और बीच में जो मैं एक मील लेता हूँ वो बहुत क्लीन होता है, बहुत क्लीन होता है, उसमें कोई चीट की गुंजाइश ही नहीं होती है। अब देखें, आज मेरे घर बनी बिरयानी, तो मैं आज पराठा नहीं खाऊंगा, ठीक है। इस तरह से मैं चीजों को बैलेंस करना होता है। अब आपने खुद कहा ज़ैनब कि आप कीटो कर रही हैं और इसमें चीट नहीं कर सकते। अब आप खुद बताइए कि कभी आपको चीट करना पड़ जाए, इसमें एक और एलिमेंट भी आ जाता है, कहीं हम जाते हैं, अभी ईद आ रही है, अगर आप कीटो पे हैं, अगर आप कहीं जाती हैं या कोई चीज आपको कोई ऑफर करता है मीठा वगैरह खाने को, तो आप नहीं खा सकते। आप इवन फ्रूट्स नहीं खा सकते। हमारे हेल्थ के नाम पे लोग आपको ऑफर करेंगे, चलो बेटा ये खा लो, ये सेहतमंद होता है, फ्रूट्स तो खा सकते हो। आप बोलेंगे नहीं, ये तो मैं कोई अनोखी डाइट पर हूँ, मैं फ्रूट भी नहीं खा सकती। तो वहां पे बड़ा एक अजीब सा इमेज जाता है कि बंदा मुस्तकिल मना किया जा रहा है कि नहीं मैं खाऊंगा ही नहीं, मैं खाऊंगा ही नहीं। अगला बंदा माइंड कर आता है, मेरे ससुराल वाले माइंड कर जाते हैं अक्सर। मैं जब लो कार्ब डाइट पे होता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मुझे नहीं खाना, या चाय इतनी मीठी उनकी घर से आती है, मैं मना करता हूँ, चाय नहीं पीऊंगा। तो लेकिन अब ये हुआ है कि जाहिर बात है मैं कीटो पे नहीं हूँ, तो मेरे पास ऑल्टरनेट चीजें आती है, मेरे पास अब फ्रूट्स आते हैं, अब मेरे पास डब्बे वाला जूस नहीं आता, लस्सी आती है, अब मेरे पास नट्स आते हैं खाने के लिए, ये मुझे चीजें पेश की जाती हैं। तो ये मैंने माइंड सेट कर दिया वहां पे अपना कि भाई देखिए मैं ये चीजें खाता हूँ और ये चीजें अच्छी होती हैं, और वो उनको भी आसानी होती है, कोई बनाना वनाना नहीं पड़ता, बस सामने केले ला के रख दिए, सामने सेब ला के रख दिए, नट्स ला के रख दिए, आसान काम, अपने लिए भी दूसरे बंदे के लिए भी। तो चीज वो करें जो आपके लिए भी आसान हो, दूसरे के लिए आसान हो। कीटो से डेफिनेटली फायदा हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि कीटो बहुत बुरी चीज है और इससे कोई फायदा नहीं होगा, बहुत सारे फायदे होते हैं इसके भी। जो उसको डिफाइन करते हैं वो यूं कहते हैं कि अगर आप लाइफ वो वाली इमेजिन करें, कि मैं उसके भी खिलाफ हूँ थोड़ा सा, कि वो वाली लाइफ इमेजिन करें जब इंसान उसमें स्टोन एज में था, तो उसके पास चीजें पकाने के लिए नहीं होती थी, ग्रेन्स वगैरह नहीं होते थे, वो जानवर को काट के खाता था, इसमें फैट्स और प्रोटीन होता था, और ज्यादा से ज्यादा सब्जियां तोड़ के खा लेता था। जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले जो आदमी, पहला इंसान जो जमीन पे आया था वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, तो उनको फरिश्तों ने कुछ चीजें सिखाई थी, फलों के नाम बताए थे, फल बताए गए थे कि ये खाना है, सब कुछ खाना था, ऐसा है ही नहीं। हमने तो कभी वो जंगलियों का कॉन्सेप्ट सीखा ही नहीं ना, हमारे माइंड में है ही नहीं कभी भी कि जंगली कभी रहे हो। इंसान जब जमीन पे आया था तो एजुकेटेड ही आया था, अल्लाह ने सिखा के चीजें भेजी थी कि ये सब चीजें करनी है, चाहे कपड़े पहनने का ढंग हो, चाहे खाने पीने का ढंग हो। तो ये जो चीज कहलाती है कीटो, ये सर्वाइवल एक वो है, टेक्निक है जो कि बॉडी में अल्लाह ने बिल्ट इन की हुई, कि खाना ना हो तो बॉडी कहाँ से एनर्जी गेन करेगी। तो वो क्या करेगी, जो सर्वाइवल के लिए आपने बॉडी फैट जमा किया हुआ होता है उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देगी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपना गोल अचीव करने के लिए यूज कर लेते हैं। सो यू कैन गिव इट अ ट्राई, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं, 2 से 3 आप कह रही 2 महीने शायद हो गए आपको करते हुए, दैट मे बी अ लॉन्ग टाइम। आई वुड से कि पहले सिर्फ आप 25-30 दिन आप करके देखें इसको। और इसमें अगर पहली बार जो मैं कर रहा था वो मैंने मिस कर दी थी, पता नहीं आवाज वहां तक गई थी कि नहीं गई थी, मैं डिस्कनेक्ट हुआ था। वो ये कि अगर आपको न्यूट्रिशन की बहुत अच्छी नॉलेज है तो, क्योंकि भाई जो ऑफर करने वाली बात की है, बातों का ऐसा होता है लोग कीटोसिस में होते हैं। हमारे साथ की एक बंदी है, हमारी अप्रेंटिस है एक्चुअली, वो कीटो पे थी बकौल उनके, कह रही मैं संडे को चीट करती हूँ, संडे को मैं पराठे खाती हूँ, कौन से वाले, वो वाले अपना पठान के जो होते हैं, और पठान वाली चाय वो आपको पता है कितनी मीठी होती है और प्योर मैदे की बनी हुई होती है। तो मैंने कहा आप कीटोसिस में रहती कैसे हैं? फिर 4 दिन कीटो में आने में लगाती हैं, उसके बाद संडे को फिर तोड़ देती हैं, खत्म। तो अच्छा ये भी नहीं करना, मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं करना, चीट आप कर ही नहीं सकते। अब फिर क्या होता है कि कोई चलते फिरते इनको टॉफी पकड़ा दे, टॉफी खा ले बंदा, सुपारी खा ली तो उससे वो हो गया, मसला हो गया, क्योंकि उसमें भी शुगर होती है। तो कहीं से भी इतनी सी भी शुगर अगर आपके मुंह में जा रही है, बाद औक़ात मेडिसिन में शुगर होती है, तो आपका जो कीटोसिस से इन होना और आउट होना इतना फ्रीक्वेंट होगा ना, उससे बॉडी बहुत सारे डैमेजेस से गुजरती है। बहुत बड़ी डिबेट है इस पे, कीटो के जो फॉलोअर्स हैं वो नहीं मानते इस बात को, लेकिन अगर आप अपने टेस्ट करवा के देख लें कुछ, अगर आप फ्रीक्वेंटली इन एंड आउट हो रहे कीटोसिस से, तो आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, ठीक है, गाउट के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और लिवर स्ट्रेस और ओवरऑल बॉडी का स्ट्रेस बढ़ जाता है।
अगर आप टेस्ट करवा लें तो उससे पता चले। लिपिड प्रोफाइल अपनी जरूर चेक करवाएं। ये टेस्ट होते हैं, कुछ अपने रेगुलर टेस्ट करवाते रहें तो आपको पता चलेगा, चेक एंड बैलेंस रहेगा कि आप हेल्दी वे में कीटो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। थैंक यू सो मच, आपने बहुत डिटेल आंसर दिया। आई थिंक वी शैल मूव टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा सवालात आ गए हैं जो मैं स्क्रीन पे एक एक करके आपके सामने शो करता हूँ। एंड देन आई थिंक वी शैल मूव टुवर्ड्स द क्लोजिंग पार्ट ऑफ दिस सेशन। फिर जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे हम उसके अंदर पूछ लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज फ्रॉम अलीजा। शी इज आस्किंग, इज जिम रिलेटेड टू फिटनेस और नॉट? आई थिंक पार्शली तो आपने एड्रेस कर दिया इसको। मैं थोड़ा सा बताया था, बस शॉर्ट आंसर देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर दे सके। हमने पहले बता दिया कि देखिए, फिटनेस इज परफॉर्मिंग योर डेली लाइफ एक्टिविटीज विदाउट गेटिंग इनफ फटीग। लेकिन अगर आपके कुछ स्पेसिफिक गोल्स हैं तो जिम उसमें बहुत मदद देता है उसको क्या कहते हैं अचीव करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप घर पे बैठ के नहीं कर सकते, तो आपको जिम हेल्प करता है डेफिनेटली। तो जिम इज अ प्लस पॉइंट। हम अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जिम के, हम खुद भी जाते हैं और दूसरे लोगों को भी भेजते हैं उससे। नेक्स्ट वन हारून की तरफ से है, ड्यू टू कोविड इशू व्हाट फिटनेस डू यू रिकमेंड एंड ड्यूरेशन फॉर अ मेल इन 30s नॉट विलिंग टू गो टू जिम? अच्छा, ये भी आंसर हम लोग कर चुके हैं। इसकी अच्छी खासी डिटेल हमने जो अपने लाइफस्टाइल बताए हैं वही करने वाली चीजें होती हैं कि देखिए, अगर आप जिम नहीं जाना चाहते इट्स ओके। दूसरा ऑप्शन होता है आप घर पे एक्सरसाइज करें। अब अगर आप एक्सरसाइज की अगेंस्ट हैं कि मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती, मैं नहीं कर पाता, तो द बेस्ट थिंग इज कि अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी, मुदस्सिर ने थोड़ी पहले बात बताई थी कि अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा दीजिए। अगर आप कहते हैं कि मैं ये भी नहीं कर सकता, तो फिर आप फिटनेस का ख्वाब देखना छोड़ दीजिए। सिंपल है, एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब हमारी बॉडी बनी ही एक्टिविटीज के लिए। ट्रू। आई थिंक ये अनम ने एक सवाल पूछा है कि आई डोंट वांट टू लिमिट माय जंक। आई थिंक ये भी पार्शियली एड्रेस हो गया है पहले। कैन आई स्टिल मेंटेन अ हेल्दी एंड फिट लाइफस्टाइल बाय वर्कआउट? अच्छा, नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा हुआ किसी ने पूछा ये। जो लोग समझते हैं कि हम जंक खा सकते हैं और मैं लिमिट भी नहीं करेंगे हम लोग, और हम उसको ओवरकम कर लेंगे वर्कआउट करके, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। देखिए, टाइप्स ऑफ कैलोरीज जो है ना वो डिफर करती हैं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें। तो अब डिपेंड करता है कि वो जंक फूड में खा क्या रही है। अब कुछ भी कर लें, उसमें प्रोसेस फूड तो आता ही आता है। तो जो उसका स्टोर का प्रोसेस है उतना इफेक्टिव आप बर्निंग नहीं कर सकती, इतनी आप कर ही नहीं सकती। अगर आप सिंपल जाके यूट्यूब पे इधर जाके सर्च करें कि आपको फलाना जंक या फलाना चॉकलेट या फलाना मीठा खाने के बाद कितना कार्डियो या कितना वर्कआउट करना चाहिए, आपको लग पता जाएगा। इस तरह तो आप सारा सारा दिन वर्कआउट करते रह जाएंगे, और वो फिर स्ट्रेस में जाना होता है। तो ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है, हम इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते। अच्छा, जंक का मैं तो एक चीज थोड़ी सी ऐड कर दूं कि हमारे जंक का ना, एक तो डेफिनेशन हमें नहीं पता क्या है। जंक जो है वो खाली कैलोरी ओवरलोड के साथ नहीं आती, उसके अंदर बहुत से अदर जो है ना उसके रिपरकशंस होते हैं इन द लॉन्गर रन, क्योंकि आप अपनी बॉडी को टॉक्सिन से ओवरलोड कर रहे होते हैं, राइट? क्योंकि इट हैज जंक फूड हैज लॉट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स। वो इस तरह नहीं बनता है। अगर आप कोई सॉस भी ले लें, अगर आप बर्गर ले रहे हैं उसके अंदर सॉस है, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो इन दी लॉन्गर रन आपको बहुत ज्यादा जो है ना इश्यूज क्रिएट करती हैं। तो कैलोरीज तो आपको शॉर्टर जो है ना वो आपको दे रहे होते हैं, आपको गोल्स खराब कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी इश्यूज होते हैं। बेटर इज रिकमेंडेड कि जंक को खत्म बिल्कुल ठीक है ना करें, बट स्टिल अवॉइड जरूर करें। Right. Then we have from Alicia, what basic exercise you guys will recommend to stay fit? I think it's more like मुझे लग रहा है शायद ये रूटीन फीमेल हाँ। एक्सरसाइज की बात कर रही हैं शायद डेली बेसिस पे, कोई इस तरह का सॉल्यूशन। इसका आंसर थोड़ा डिटेल में हम इसका आंसर थोड़ा डिटेल। जी एग्जैक्टली, काफी डिटेल्ड होगा और ये स्पेसिफिक आंसर होगा इसका, क्योंकि ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। बेसिक हम यही कहेंगे कि हाँ, जो भी स्टार्ट करना चाह रहा है फिटनेस जर्नी को, एक्सरसाइज करना चाह रहा है, तो पहले बहुत लाइट एक्टिविटी से स्टार्ट करें।
सबसे आइडियल जिसमें वॉक कंसिडर की जाती है। और बाकी अगर आप चाह रहे हैं कि बेसिक एक्सरसाइज देख लें तो हमारा यूट्यूब चैनल जरूर विजिट करें, वहाँ पे काफ़ी सारी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर पे कर सकते हैं, काफ़ी इजी वेरिएशंस भी हैं उसके अंदर। तो आप ये देखें कि उसमें से कौन सी आपके लिए डुएबल है, उनकी आप सीक्वेंस बनाएं एंड स्टार्ट डूइंग देम। यहाँ पे एक महविश का सवाल है, वो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि व्हाई हेल्दी ईटेबल्स आर नॉट टेस्टी। Why healthy eatables are not tasty? देखिए, इट्स नॉट अबाउट बीइंग टेस्टी। ऐसा नहीं है कि टेस्टी नहीं होता, आप उसे टेस्टी बनाते नहीं, आप उस पर मेहनत ही नहीं करते कभी भी। अब आपको मैंने एग्जांपल दी कि देखिए मैं भी ब्रेड ही खा रहा हूँ आजकल, मैं रोजाना ब्रेड खा रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या किया कि ब्रेड में ही हेल्दी वे निकाल लिया। ठीक है, मैं मीठा भी खाता हूँ, ऐसा है, और मैं बाकी चीजें भी खाता हूँ, लेकिन वही कि वो कंट्रोल करनी पड़ती हैं चीजें। और जो बाकी चीजें हैं ना, वो मुदस्सिर ने पहले भी कुछ चीजें कही जिसमें कुछ टॉक्सिन्स वगैरह मिले होते हैं, प्रोसेस होती हैं, और शुगर ही होती हैं, बहुत सारी चीजें इस टाइप की जो होती हैं, तो वो काफी एडिक्टिव होती हैं। सबसे ज्यादा दुनिया में किया जाने वाला जो नशा है वो एक्चुअली चीनी है, और चीनी को छोड़ना आसान नहीं है। अगर आप में से कोई, तीनों में से कोई भी मीठे का शौकीन है, उसका आइडिया होगा, कभी आप छोड़ के देखें, इतनी शदीद क्रेविंग होती है मीठे की, इतनी शदीद कि बाद औक़ात आपका दिल चाहता है कि आप खाना वाना कुछ ना खाएं, कुछ मीठा सामने आ जाए आप खा जाए। रीजन क्या होता है कि वो एडिक्शन डेवलप हो चुकी होती है बॉडी में, तो उसको टेस्ट बर्ड्स भी जो है उसी को अप्रूव करते हैं कि यार यही चीज चाहिए इस टाइम पे। तो इट्स काइंड ऑफ एन एडिक्शन, और इसको आप डेफिनेटली ओवरकम कंप्लीटली नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बैलेंस यूं रखें कि ये नहीं कि बैलेंस में आप में बस ये एक्सरसाइज है और ये हेल्दी ईटिंग करनी है। आप हर तरह की चीज खाएं। आसान तरीका होता है पीसी, जिसे हम कहते हैं पोर्शन कंट्रोल, पोर्शन कंट्रोल करके खाएं चीजों का। और अगर आपने बनाया हुआ है कि मेरा इस टाइम पे ये मील होना चाहिए जो कि हेल्दी है, लेकिन आपका दिल चाह रहा है आज मैं कुछ और खा लूं, तो बिलीव मी, अगर आप पहले हेल्दी मील खा लेंगे, उसके बाद अगर आप कचरा भी खा लेंगे, तो वो लाख दर्जे बेहतर है। रीजन ये है कि एक तो काफी हद तक आपकी क्रेविंग ऑलरेडी कम हो चुकी होगी, आप थोड़ा क्वांटिटी में कम खाएंगे उस चीज को, और जो आपने फूड खाया डेफिनेटली वो फाइबरस होगा, तो वो काफी हद तक उसको ओवरकम कर देगा। 100% नहीं करेगा, लेकिन काफी हद तक कर देगा। आई थिंक आई कैन रिलेट इट टू दैट। मैंने ये काफी कोशिश करी थी एक दौर में टू लिमिट द शुगर कंटेंट, और मैं काफी हद तक कामयाब भी रहा था। बट जैसा आपने एड्रेस किया ना कि देयर आर थिंग्स जिनके अंदर शुगर नेचुरली होती है एंड यू कांट लिमिट देम, सो वो आप बिल्कुल आइसोलेशन के अंदर शुगर नहीं कर सकते, एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स स्टार्च इन योर बॉडी, और वो एक अनहेल्दी हो जाती है। सो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक शुगर का तो मैं समझता हूँ कि हम जीरो नहीं कर सकते, कीपिंग इन आवर लाइफस्टाइल। नहीं करना भी नहीं चाहिए ना, आइडियल है ही नहीं, सजेस्टेड ही नहीं है। आपकी शुगर की मतलब रेकमेंडेड डोजेस होती हैं, बस ये होता है कि आप उसकी सोर्सेस चेंज करें। हमारे यहाँ फ्रूट्स जिनमें शुगर पाई जाती है उनका इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं। हमारे यहाँ फ्रूट्स से कितनी ज्यादा मिथ्स एसोसिएटेड है कि खजूर खा लेंगे तो हम गर्मी हो जाएगी हमारी बॉडी में, आम ज्यादा खा लेंगे तो पता नहीं डायबिटिक के इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे, जबकि ये लाख दर्जे बेहतर चीजें हैं बनस्बत की जो हम लोग फ्रूट्स, जो हम लोग डिजर्ट्स खा रहे होते हैं। और डिजर्ट्स में आजकल इतनी ज्यादा टॉपिंग्स आने लगी है, मतलब डिजर्ट बातों का छोटा लगता है, टॉपिंग्स इतनी वेरिएशंस की होती हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, लाजमी, मैं थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी लेकिन मैं बताऊंगा जरूर। अभी परसों तरसों की बात है, टीवी पे प्रोग्राम चल रहा था एंड माय मॉम वाज वाचिंग इट। मेरी अम्मा भी बहुत शौकीन है इस तरह की चीजें खाने पकाने की और खाने की भी। तो एक जलेबी टाइप की चीज बनी जो कि शीरे में डुबो के रखी गई, ठीक है। उसके बाद मोहतरमा ने उस पर रूह अफ़ज़ा डाला, मतलब कोई लाल शरबत था, मेंशन नहीं था। उसके बाद उस पर उन्होंने कंडेंस मिल्क डाला। जस्ट इमेजिन मीठे की क्वांटिटी, मतलब मुझे उसके बाद ना शुरू में तो अच्छा लगा कि यार मीठा है कुछ, जब दो मेरे ख्याल से अयाज का इंटरनेट, आई थिंक यस, मुदस्सिर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अयाज का थोड़ा कनेक्टिविटी इशू आ रहा है। वेट कर लेते हैं। I think let's wrap it up and मेरे ख्याल से आई थिंक जस्ट 1 मिनट वेट कर लेते हैं, वरना फिर रैप इट अप कर लेते हैं, क्योंकि वी हैव ओनली 3 क्वेश्चंस लेफ्ट।
If they reconnect तो फिर हम इन तीनों को सवालात को आंसर कर देते हैं, वरना what we do is that we will take these questions from take these answers from the guests and then post it accordingly. Sure. सिद्रा आप क्वेश्चन रीड कर Sure. दीजिएगा, मुदस्सिर और अयाज will reconnect. Starting from Saad, Harun, and I think फैजान, मेरे ख्याल से अब आप ओके फैजान, मैं आपको आज के सेशन में कैसा फील हो रहा है? लग रहा है कोई मोटिवेशन मिल रही है? लग रहा है कि डाइट करेंगे अब आप रमजान के बाद, ईद के बाद? I am planning to do so. Long waited journey तो है मेरी खुद की भी. बीच में गैप आया था, बट जैसा कि अयाज ने और मुदस्सिर ने राइटली पॉइंटेड आउट किया कि आई थिंक we need more sustainability. So I think that's a very good key takeaway for me in this session. कि whatever we do, I think we should sustain it. और जो भी हम रूटीन फॉलो करें उसको हम इस तरह से लेके चलें कि हम उसको एक लॉन्गर जर्नी के तौर पे प्लान करें. आई डिड इट अ लॉट ऑफ टाइम्स कि मैंने 1 महीने 2 महीने किया, 3 महीने किया, मतलब मल्टीपल टाइम्स कर चुका हूँ मैं. नो शुगर डे भी मैंने बनाया वीक के अंदर, 1 चीट डे इन अ वीक भी रखा. सो आई डिड अ लॉट ऑफ सेशंस ऑफ दीज. और मतलब ये जो अयाज ने एक बात की थी, बड़ी मजे की थी. आई कैन रिलेटेड टू दैट कि जब आप किसी के घर जाते थे तो उसको पता होता था कि यार ये नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, ये नहीं खाएगा, एंड इट एक्चुअली फील्स अ लॉट ऑकवर्ड एट टाइम्स एट वेल कि यार आप ये नहीं खाते, आप वो नहीं खाते, तो अगला भी माइंड करना शुरू हो जाता है. बट आई थिंक दैट इज एसेंशियल पार्ट, बिकॉज आई थिंक जो मेजर मसला है हमारा वो ये है कि हमारा लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा ट्रबलसम होता जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड वी ऑल आर पार्ट ऑफ इट. हमारी सेटिंग्स, हमारी जो लैपटॉप सेटिंग्स कह लें आप उसको, या चेयर सेटिंग्स, या गाड़ी के अंदर भी बैठना ही होता है, हमने ड्राइव कर रहे हैं या बैठे हुए हैं. सो द सिटिंग पोस्चर और कंटिन्यूअस एक मैकेनिकल स्ट्रेस आप अपनी बॉडी को दे रहे होते हैं विद द पोस्चर, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको हम खत्म करें या कम करें. सो आई थिंक जो वॉक, जो वर्कआउट्स होते हैं वो इसके अंदर बड़ा हेल्प आउट करते हैं कि हमारे अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी और वो चीजें बिल्ड करते हैं ताकि हम वो चीज कोऑर्डिनेट कर सकें. हम बेसिकली राइट टाइम का वेट करते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, मंडे से शुरू करेंगे, 1 मार्च से शुरू करेंगे, 1 जून से शुरू करेंगे. हम मौका देते हैं अपने आप को कि यार अच्छा अब डाइट शुरू करनी है तो आखिरी चीट मील कर लेते हैं, यार लास्ट बिरयानी खा लेते हैं, आखिरी निहारी खा लेते हैं, कल से तो डाइट शुरू करनी है. तो हम मतलब हम बहुत अजीब सी एक वो है, कौम है, या नेचर हमारा जो है ना, एज एन ह्यूमन हमारा नेचर बहुत हमें चाहिए भी वो चीज, लेकिन उसके लिए एफर्ट भी नहीं करनी है. और हम चाहते हैं कि बस एक दिन सुबह उठें और हम सब जो है वो दुबले हो चुके हैं. राइट. Extremely sorry, मेरी तरफ से कुछ कनेक्टिविटी इशू आ गया था. Extremely sorry. कोई बात नहीं. So we were discussing के what are our aha moments of the session. So मैंने शेयर किया था कॉन्टेक्स्ट के, मैंने कहा सस्टेनेबिलिटी वाली जो आपने बात की कि कोई भी प्रैक्टिस अडॉप्ट करें उसको सस्टेन करें एक लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर और उसको मैनेज कर सकें इजीली. आई थिंक ये मेरा की टेक अवे था. सिद्रा और ज़ैनब विल कवर, हमारे पास लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो हम कवर कर लेते हैं, फिर वी विल मूव टुवर्ड्स क्लोजिंग. सो एक सवाल जो अयाज है, आई थिंक ये रिलेटेड, आपने बात भी की थी बीएमआई की, ये बीएमआर की बात कर रहे हैं साथ, कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट, अ गुड मेजर टू एडजस्ट योर डेली कैलोरी काउंट. जी हाँ, सही कह रहे हैं. अक्सर लोग बीएमआई को ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं. एक्चुअली दोनों डिफरेंट चीजें हैं और दोनों की अपनी अपनी अहमियत है. बीएमआई के बारे में पहले बता दूंगा. देखिए, बीएमआई में से हम ये नहीं देख सकते कि खाली आप किस कैटेगरी पे लाई कर रहे हैं. बादों का ओवरवेट वो शो कर रहा होता है, लेकिन आपका मसल कंटेंट ज्यादा होता है और आपका बोन मास ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से ओवरवेट शो करता है. कुछ लोग के नेचुरली इस तरह की चीजें होती हैं. जरूरी नहीं है कि अगर आप ओवरवेट हैं तो प्रॉब्लम होगा. तो उसके लिए आपको फैट कंटेंट निकालना पड़ता है. बीएमआर इज एक्चुअली व्हाट टेल्स यू कि व्हाट टू ईट, कितना आपका इंटेक होना चाहिए, जिसमें आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपका लाइफस्टाइल है कैसा, सेडेंटरी है, एक्टिव है, वेरी एक्टिव है. तो उसके हिसाब से बता देगा कि आपकी जो बेसिक आपके सर्वाइवल के लिए मेंटेन करने के लिए कितना रिक्वायरमेंट होता है, कैलोरी की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद आपको कितना उस पर एडिशन लेना है अगर आपकी एक्टिविटी इतनी है. तो बहुत अच्छा तरीका है बीएमआर, इसको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए. राइट. हारून की सवाल आया है, इज इट ट्रू डूइंग ओनली planking daily? Okay, planks. We can lose belly fat.
हाय हरून, काश इतना आसान होता है। देखो पहली बात तो ये कि जो आपने कहा ना कि लूज बेली फैट, टफेस्ट इतनी है नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है कि अगर आप उसकी वेरिएशन ट्राई करें तो, लेकिन देखिए बात ये होती है कि स्पॉट रिडक्शन नहीं होती है। मैं चाहूंगा ना कि मेरे पास एक ग्लास है और यहां से पानी कम हो जाए, ऊपर से कम ना हो, तो ऐसा नहीं होता। फैट बर्निंग एक प्रोसेस है, बॉडी को जहां से भी इजीली कंज्यूमेबल फैट मिलेगा वो उसको कंज्यूम कर लेगी। ठीक है, अगर आप ओवरऑल पूरी रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो, वरना नहीं होगा ऐसा। तो खाली प्लैंक से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप खा पी वही रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल जो है बहुत लेजी है, सेडेंट्री है, तो प्लैंक जितने भी कर लें, आपकी स्ट्रेंथनिंग जरूर होगी कोर बॉडी की, वो स्ट्रेंथनिंग के लिए होती है। एक्सरसाइज याद रखिएगा, एक्सरसाइज कंडीशनिंग करती है आपकी, एक्सरसाइज कभी भी डायरेक्टली फैट बर्निंग नहीं कर सकती। तो उसके लिए आपको अच्छा हेल्दी जो लाइफस्टाइल होता है वही फॉलो करना पड़ता है। So healthy lifestyle is the key. बस ये है, ये है एग्जैक्टली। और उसामा का एक सवाल है कि it is a common saying that you are only one workout away from a good mood. How you relate it? अच्छा, ये बहुत वेरी करता है ऑब्वियसली, पर्सन टू पर्सन, कंडीशन टू कंडीशन। और जो लोग एडिक्टेड हैं एक्सरसाइज के, उनके लिए भी ऐसा होता है। वंस दे डू दिस थिंग तो उनका मूड अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो उसके एडिक्शन है ना उनको। एक्सरसाइज भी एक एडिक्शन है। ये कभी जो करने वाले होते हैं बताते हैं आपको कि जिस दिन नहीं कर पाते उनको बड़ा गिल्ट फील होता है, काश में चला जाता है, काश कर लेता। ऐसा लोग बाद का तबियत खराब में भी प्रेफर करते हैं कि मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर लूँ लेकिन कर लूँ। और दूसरे लोग जो कि नहीं जानते कि एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो उनको भी जानना चाहिए कि अगर आपने ओवरडू नहीं किया एक्सरसाइज को, तो डेफिनेटली एक्सरसाइज, भले आप जितने थके हुए हो मेंटली, फिजिकली नहीं, मेंटली अगर आप अच्छा थके हुए हैं और उसके बाद अगर आप फिजिकली एक्टिविटी कर लेते हैं, जरूरी नहीं एक्सरसाइज, एक्टिविटी भी कर लेते हैं, तो आपका मूड बेहतर हो सकता है। वो कुछ हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, एक्चुअली स्टिमुलेट होते हैं इस टाइम पे। So I would agree. Got it. I think that's it from our side on the questions. I think we'll proceed towards close while asking के Zainab के comments ले लेते हैं, closing remarks, then Sidra के, and then फिर आपकी तरफ से, और उसके बाद मैं अपने comments share कर देता हूँ, starting from Zainab. मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा आज का सेशन, और मेरा टेक अवे यही है कि कंसिस्टेंसी एंड इंस्टेड ऑफ ट्राइंग आउट न्यू डाइट्स, वन शुड फोकस ऑन हेल्दी ईटिंग, और चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना के और मैनेज करके चीज़ों को चलेंगे तो आई एम श्योर के फिटनेस और हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिलेंगे उससे। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस, हमें काम करना चाहिए राइट डायरेक्शन में। जी सर, राइट डायरेक्शन में। हाँ, मुझे बहुत मजा आया ये सब कुछ सुन के, बिकॉज मैं थोड़ा सा फिटनेस पे काफी ख्याल करती हूँ और मुझसे लोग ये पूछते हैं कि कैसे फिट रहती हो, कुछ डाइट प्लान बताओ। तो मुझे आज बहुत मजा आया ये सब कुछ सुन के। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो मेरी काफी नॉलेज में इजाफा भी हुआ है, और मैं कहना चाहूंगी कि एज वाइज अपना थोड़ा सा पढ़ाई भी करनी चाहिए कि हम लोग को क्या खाना चाहिए और क्या चीज छोड़ देनी चाहिए। और जंक जो है वो अगर हफ्ते में एक दफा है तो मेरे ख्याल से वो महीने में एक दफा हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये कि अच्छा हेल्दी, मुझे बहुत मजा आया, हेल्दी वेरी गुड। और मुझे बड़ी अच्छी एक टिप भी मिल गई कि ईस्ट कम यूज कर सकते हैं ब्रेड बनाने में। थैंक यू फॉर द टिप। Okay, thank you. Thank you. अच्छा अयाज, before you, मैं चाह रहा था एक सवाल छोटा सा एड्रेस कर दें आप, जो मेरे पास अभी किसी ने मैसेज किया था। वो ये था कि some people looks naturally fit, they don't do or bother with their diet routine या sleep routine या इस तरह की कोई भी चीज वो नहीं कर रहे होते इनकलकेट अपने रूटीन में, they are naturally fit. And is it just natural, और ये चीज कोई हेरिडिटी वाइज कैरी हो रही होती है या क्या है, या they are just out of this world? ये आईविश के एक क्वेश्चन शुरू में आता है तो बहुत बहुत डिटेल में मैं इसकी बताता है। अभी कोशिश करूंगा मैं इसको समझा पाऊं। देखिए फिटनेस, अगेन मैंने आपको बताया था, फिटनेस के मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें आपकी स्ट्रेंथ चेक की जाती है, इसमें आपकी एंड्योरेंस चेक की जाती है, इसको हम जनरली स्टेमिना कंसीडर करते हैं। आपकी कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ की चेक की जाती है, और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है। लास्ट कंटेंट आता है बीएमआई।
और हम देखते हैं सिर्फ BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स या बॉडी कॉम्पोजिशन, अगर मैं इसको आसानी से कहूँ तो हम बॉडी कॉम्पोजिशन देख के दूसरे को बताते हैं कि यार ये बंदा फिट है और ये बंदा फिट नहीं है। बाद औकात देखने में ऐसा आएगा कि बहुत मोटे लोग जो हैं वो स्पोर्ट्स खेल पा रहे होंगे, जिसके हमारे पास बहुत सारे स्पोर्ट्समैन के एग्जांपल है, उससे बहुत लीन और फिट मस्कुलर बंदे बहुत सारी स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे होते, भाग नहीं पा रहे होते, बहुत सारा वेट नहीं उठा पा रहे होते। एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग लड़का है मेरा एक दोस्त जानने वाला, लेकिन एंड्योरेंस वर्कआउट या फ्लेक्सिबिलिटी उसकी अच्छी नहीं थी, उसने इंजरी कर ली अपनी बॉडी में, ठीक है। और कुछ लोगों में जेनेटिकली ऐसा होता है ऑब्वियसली, जिनकी जितनी पुष्टि चली आ रही है, ऐसे लोग जो कि बहुत एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे होते हैं, तो उनकी इसमें होता है। इस तरह आप अगर खैबर पख्तूनख्वा साइड पे अगर आप जाके देखें, कुछ बलोच साइड पे लोगों को देखें, कुछ और रीजन्स हैं दुनिया भर में जहाँ पे आपको नेचुरली लोग नजर आते हैं इस टाइप के, लेकिन अगर वो भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल को बहुत लॉन्ग टर्म फॉलो करेंगे तो उनके कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स उनको नजर आना शुरू हो जाएंगे, कोई ना कोई रेपरकशंस जरूर सामने आएंगे। Got it. Thank you so much, Ayaz and Mudassir, both for joining us today. Before we close, आप अपने last minute comments share कीजिए कि how this session was and how you reflect on this. सबसे पहले जो होना चाहिए था वो आखिर में कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड मुदस्सिर एज वेल कि मैं आप लोगों ने मौका दिया अपनी बात यहाँ शेयर करने का, क्योंकि ये नीड ऑफ टाइम है एक्चुअली, खास तौर पे लॉकडाउन में तो बहुत ज़रूरत पड़ रही है इस चीज़ की लोगों को, क्योंकि लोगों ने समझ लिया है कि अब तो भाई कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग, जिम्स क्लोज हो गए हैं, खाने पीने को कुछ है नहीं। अच्छा मजे की बात, खाने पीने को हेल्दी कुछ नहीं, अनहेल्दी सारा कुछ मिल रहा है। द थिंग इज दैट यू गाइस आर नॉट फाइंडिंग दिस स्टफ। तो वही बात इन द एंड में कहूँगा कि चीज़ों को ऐसे लेके चले जैसे कैरी कर पाए, जिसको ज़ैनब ने बड़े अच्छे से समझा और उसको एलैबोरेट भी किया, वही पॉइंट में रिपीट करूंगा। और चीज़ों को ट्राई करें, चेंज करें, एक्सपेरिमेंट्स करें, खाने पीने की चीज़ों की खास तौर पर बात कर रहा हूँ। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे आपको उस चीज़ का सही फ्लेवर से ज़रा, बल्कि आपके लिए अभी आपने कहा था कि चीज़ें बहुत मीठी, ये बाकी चीज़ें जो होती हैं अनहेल्दी वो काफ़ी टेस्टी होती हैं। एंड में बस एक बात कहना चाहूँगा मैं अपने रिसेंट एग्जाम्पल के, मुझे या मेरे घर पे कोई खास पालक खाने का शौक नहीं है। पपाई को देख के हम लोग बचपन में बहुत शौक होता था कि यार पालक खाएं, लेकिन जब मुंह को लगाओ तो अजीब सी लगती थी। लेकिन बिलीव मी, जब से मैंने उसको बल्कि आप जरा ट्राई कर चुके हैं, अगर कीटो तो कीटो में आप पालक खाते हैं तो कभी आप उसका ऑमलेट ट्राई कीजिए। क्रीम जरूरी नहीं है ना, द थिंग इज क्रीम इज नॉट इम्पोर्टेंट, द थिंग इज कि मैं उसको अंडे में खा रहा होता हूँ, मैं और मेरी वाइफ सिर्फ 2 लोग हैं, हम लोग आधा से 1 पाव पालक रोज की खाते हैं, ऑमलेट में पता भी नहीं चलता। जबकि आप जनरली खा के देखें तो मतलब लिटरली अजीब बजायका लग रही होती, कौन खाएगा पालक, कोई खाता है? और कोई ओवर कुक चीज नहीं खा रहा मैं ऐसे ही कि पालक को मैंने खराब कर दिया, उसका कोई न्यूट्रिशन वैल्यू खो दी हो। प्लेन से ऑमलेट बना हुआ होता है, उसमें इतनी पालक पड़ी हुई होती है। तो जब तक मैंने उसको ट्राई नहीं किया है तब तक मैं उसको बुरा समझ रहा था कि नहीं यार बहुत बुरे टेस्ट में होगी वो, मैं उसको और मुख्तलिफ तरीके से बना के ट्राई कर सकता हूँ। ब्रेड से मेरी जान नहीं छूटती तो मैंने उसमें वेरिएशन ट्राई कर ली। अब मैं उसमें ग्रेन्स ऐड कर देता हूँ अपनी मर्जी से, ओट्स में उसमें ऐड करता हूँ। मैंने बहुत सारी कीटो ब्रेड्स भी देखी थी ताकि मैं मतलब लो कार्ब ब्रेड जो है ले सकूं, वो भी मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा। तो थिंग इज दैट आप एक्सपेरिमेंट करें, और एक्सपेरिमेंट किए बगैर अपने वर्डिक्ट ना दें तो फिटनेस और जो डाइट का जो सफर है इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। That's all from my side. Thank you so much. Thank you so much. And good learning for us as a team, and we hope to get connected again. Just last comment मेरी तरफ से ये था कि I think the one only bad workout is the one that did not happen. और हमारे साथ काफी ज्यादा बेहतरीन बात कर दी। चलें, ओके थैंक यू, Thank you. Allah Hafiz.